गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। তাহলে আরম্ভ করি আজ আমি ভর ভর আলোচনা করিবা। হোয়াট ইজ ভর? A ভর is a word that describes an action, state or position in a sentence. Clear? তাহলে a verb is a word that describes an action, state or the position in a sentence. ধরি নিয়ে যাও আমি সেন্টেন্স লিখিবা রাম প্লেজ ফুটবল। Here verb is of plays. এটি verb কি plays কোন এ কোন দর্শাଉଛି না না অ্যাকশন କୁ ସୂଚାଉଛି। plays কোন ଗୋଟେ action କୁ ସୂଚାଉଛି, ଖେଳିବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏହା ଏକ action କୁ ସୂଚାଉଛି ଏଠି। ତାହେଲେ plays ତାହେଲେ କଣ ଖେଳୁଛି ନା ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛି। ସେପରି ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ I am eating rice, এটি সবজেক্ট কি I এবং जो am eating ଅଛି ଖାଇବା जो eating ରହିଛି মেন verb ରହିଛି ଏଠି ଏହା ଗୋଟେ ବି action କୁ ସୂଚାଉଛି। ଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଖାଇବା ଗୋଟେ action, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ action କୁ ହିଁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି eating ଟା କଣ action କୁ ସୂଚାଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ action word, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ action word। ଦେଖ ଏଠି plays ବି ଗୋଟେ action word, ଏଠି ବି eating ଗୋଟେ action word। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି Ram is a doctor, okay, Ram is a doctor, କହିବି Ram loves me, ओके। ये जो दुईटा सेंटेंस हम लिखिबा जे प्रथम सेंटेंस लिखा राम इज ए डॉक्टर, एटी भर कोडा एटी भर होउची इज। राम कोन ना डॉक्टर ओटे, ये जो इज ता कोन से एक्शन नय आमे एठी राम कोन ओटे ना डॉक्टर ओटे। द्वितीय वाक्य कोन राम लव्स मी भलो पाइबा, ଏହା ଏକ ମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍। ଏଥିରେ ଆମକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ବା ଶାରୀରିକ বা ফিজিକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ରାମ ଲଭ୍ସ ମି ଜଣେ ଭଲ ପାଇବା ତା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆକ୍ସନ କୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ। ଧରି ନିଆଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ I can understand, I can understand ମୁଁ ବୁଝିପାରେ। ଏ ଯୋଉ ବୁଝିପାରିବା ବୁଝିପାରିବା ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମେ କୋଉଥିରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଆମେ ମନରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ହେଲା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଅଟେ। ତେଣୁ ପିଲେ ଯେ ଦେଖ ଏଠି ଇଜ୍ ହଉ ଲଭ୍ସ ହଉ ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉ, ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ତିନୋଟି ଭର୍ବ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖେଳିବା ଖାଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆକ୍ସନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭର୍ବ ଯେ କେବଳ ଆକ୍ସନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଭର୍ବ ଇଜ ଏ ଡୁଇଂ ୱାର୍ଡ, ଦେଖ ଆମକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଭର୍ବ ଇଜ ଏ ଡୁଇଂ ୱାର୍ଡ, ଭର୍ବ ଇଜ ଏ ଡୁଇଂ ୱାର୍ଡ। ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ, ଆର ଡେଫିନେସନ କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭର୍ବ ଇଜ ଏ ଡୁଇଂ ୱାର୍ଡ, ଏହା 50% ହିଁ ଠିକ, 100% ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ କହିପାରିବାନି ଯେ କେବଳ ଯେ ଭର୍ବ ଇଜ ଏ ଡୁଇଂ ୱାର୍ଡ, ଯେ ଭର୍ବ କେବଳ ଆକ୍ସନ କୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଡୁଇଂ ଗୋଟେ ଡୁଇଂ ୱାର୍ଡ ଅର୍ଥ କଣ ଆକ୍ସନ ୱାର୍ଡ ନା, ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଯେ ଆକ୍ସନ କୁ ସୂଚାଇଥାଏ ତାହା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଭର୍ବ କେବଳ ଆକ୍ସନ କୁ ସୂଚାଇ ନଥାଏ। ଭର୍ବ କଣ ସୂଚାଇଥାଏ ନା ଭର୍ବ ସୂଚାଇଥାଏ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ କୁ ବି ସୂଚାଇଥାଏ। ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଭର୍ବ ଆକ୍ସନ କୁ ସୂଚାଇ ନଥାଏ, ଷ୍ଟେଜ କୁ ବି ସୂଚାଇଥାଏ। ଭର୍ବ ଯେ କେବଳ ଆକ୍ସନ କୁ ସୂଚାଇଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ, ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ଦେଖ ଏଠି ଇଜ ଅଛି, ଏଠି ଲଭ୍ସ ଅଛି, ଏଠି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଠି କୌଣସି ଆକ୍ସନ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ଲେଜ ଅଛି, ଇଟିଂ ଅଛି, ଏଠି କାହା କଣ ସୂଚାଇଛି ଏଠି ଆକ୍ସନ କୁ ସୂଚାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ରାମ ହାଜ ଏ ପେନ୍, କ୍ଲିୟର? তাহলে যে রাম পাখরে গোটে কলম ଅଛି, রাম হাজ এ পেন, এটি যে ক্রিয়া হচ্ছে হাজ, এটি ভর্ব কোন আছে হাজ। হাজ কোন সূচাଉଛି এটি রাম র অধিকার କୁ সূচাଉଛି। রাম হাজ এ পেন, এই পেন ର ଅଧିକାର କାହା ଉପରେ ଅଛି? রাম ଉପରେ ଅଛି ନା, କଲମଟା କାହାର ରାମର। ତାହେଲେ ପୋଜିସନ କାହାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଇ ହାଭ ଏ ପେନ୍,
यार अर्थ जे पेन अधिकार कहाँ पर अछि मोर ना मोर कलम टी मोर अटे अर्थात से कलम ऊपर अधिकार मोर तेनु एठी पोजीशन को सूचौछि ठीक से लक्ष्य करो ये कहा सूचौछि ना ये पोजीशन को सूचौछि ये पोजीशन को सूचौछि तेनु आमे एठी जो दुईटी सेंटेंस रे देखले कहा सूचौछि ना एक्शन को सूचौछि एठी जो तीनोटी सेंटेंस देखले कहा को सूचौछि ना स्टेप्स को सूचौछि एठी जो सेंटेंस देखले राम हैज ए पेन बा आई हैव ए डॉल बा आई ओन्स ए कार आई ओन ए कार तेनु एठी जो सेंटेंस आमे देले एहा कहा सूचौछि ना पोजीशन को सूचौछि जनको अधिकार तेनु जो क्रिया आमे देखले जे क्रिया को जो डिस्क्राइब कले आमे ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन स्टेट्स और पोजीशन इन ए सेंटेंस सेंटेंस रे वर्ब सर्वदा एक्शन को सूचि न थाए जे आमे ए कामटी करूछंती आमे कहंती जे व्हाट द सब्जेक्ट डूज व्हाट द सब्जेक्ट डज वर्ब ना वर्ब इज ए वर्ड व्हाट द सब्जेक्ट डज सब्जेक्ट जहा करे ताको आमे कहिबा वर्ब तले जो वर्ब रा केवल से जो सेटिक डेफिनेशन था संपूर्ण डेफिनेशन नै तेनु हमको बुझिबा को पड़िबो जे वर्ब जो रही थाए वाक्य रे ताहा केवल एक्शन को सूचि न थाए ताहा मध्ये पोजीशन को सूचि थाए एवं अवस्था को बा स्टेप्स को मध्ये सूचि थाए तेबे पले एबे हम जदी एही दृष्टिकोण रो वर्ब रा डेफिनेशन मा उची डिवाइडेशन करिबा बार जदी हम प्रकार भेद देखिबा जे वर्ब रो केते प्रकार रहिछि तला हम एथिरु कोन पाइबा ना वर्ब को दुई भाग में भी विभक्त करि परिबा कोन कोन ना जदी हम देखिबा वर्ब रो डिवाइडेशन एठी देखिबा तले गोटे होइछि एक्शन वर्ब एक्शन वर्ब आ गोटे नॉन एक्शन वर्ब ओके गोटे एक्शन वर्ब आ गोटे नॉन एक्शन जो एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब भीतर फरक यदि हम देखिबा ए जो नॉन एक्शन वर्ब को मध्ये हमें स्टैटिक वर्ब बोली कहंती कारण ए स्टेट्स को सूचित है ना स्टैटिक वर्ब आको हमें स्टैटिक वर्ब बोली कहंती ओके ये होची एक्शन वर्ब ये होची नॉन एक्शन वर्ब बा आको हमें स्टैटिक वर्ब बोली कहंती जेपर यदि हम एक्शन वर्ब रो उदाहरण से नबा केतबे एक्शन वर्ब रो देखिबा धरि ने जो प्ले आमे खेलिबा खाइबा एक्ट प्ले ना ईट swim run write ये सब वर्ब गुडी को एक्शन वर्ब अंतर्भुक्त हेबो और नॉन एक्शन वर्ब गुडा को देखो जत्ते गुडी क्रिया आमे हमर मानसिक स्तर रे हम करि थांती से सब क्रिया गुडी को आमे नॉन एक्शन वर्ब कहबा बा आमे से गुडी को कोन कहबा ना स्टैटिक वर्ब कहबा जेपरि हमरे आमे एग्जांपल दनबा लव प्रिफर लाइक ओके टेस्ट which understand hate एगुडी सब कोतरे जीवो एगुडा सब नॉन एक्शन वर्ब जीवो सबुठारु आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस आमे एठी बुझि जवा जरूरी जे जते बेले आमे सेंटेंस रो प्रोग्रेसिव करि थांते अर्थात जते बेले आमे कोन करि थांते इम्परफेक्ट सेंटेंस तैयार करि थांते प्रेजेंट रो जो इम्परफेक्ट सेंटेंस तैयार करि थांते प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस तैयार करि थांते सेते बेले केवल एक्शन वर्ब को नहीं कि हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म तैयार करि परिबा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म हमें केवल एक्शन वर्ब को नहीं करि परिबा बा किंतु नॉन एक्शन वर्ब बा जते गुडी स्टैटिक वर्ब अछि ए स्टैटिक वर्ब को नहीं कि हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म तैयार करि परिबा नहीं वी कैन नॉट मेक एनी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म बुझि बच्चा वी कैन मेक any present progressive form okay with the stative verb stative verbs को नहीं कि आमे कौन से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वाक्य तैयार करि परिबा नाही आमे कहि परिबा नै धरि जाऊ गोटे सेंटेंस होछि लव आमे केबे कहि परिबा नै जे आई एम लविंग ओके आई एम लविंग यू केबे हे परिबा नै इट्स रॉन्ग आमे केबे कहि परिबा नै धरि ने जो प्रिफर आई एम प्रिफरिंग केबे हे परिबा नै क्लियर केबे आई एम अंडरस्टैंडिंग आमे देखि छथि आई एम अंडरस्टैंडिंग हे परिबा नै तले जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म जो सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आमे नॉन एक्शन वर्ब बा स्टैटिक वर्ब नै करि परिबा नै
तेणु एगुड़ी को जो आम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म को सूचई था एगुड़ी सब आम सिंपल प्रेजेंट ही एगुड़ी को सूचई था जेपरी भाव में आई एम लविंग न लिखी आम कौन कहबा आई लव यू कहबा आई एम प्रिफरिंग न कहि कौन कहबा आई प्रिफर आई एम अंडरस्टैंडिंग न कहि कौन कहबा आई अंडरस्टैंड क्लियर है ताहले जो एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब बा एक्शन वर्ब एवं स्टेटिव वर्ब भीतर डिफरेंसेस होउचे एगुडी को एवं एई स्टेटिव वर्ब गुडी को नै कि आमे कोन करि परिबा नहीं केबे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म कहि परिबा नहीं एगुडी को केवल सिंपल प्रेजेंट माध्यम रे ही आमे सेही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म गुडी को सूचैबा बा जो कार्यटी कहबा समय रे घटी थाए ताकू सूचैया पई हमकु सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ही नबाक पड़िबो धरि जो आई सी आई एम सीइंग केबे हे परिबो नाही सी मध्य गोटे स्टेटिव वर्ब अंतर्भुक्त अटे मन रखि था बोले सी ओके ताले आमे एक्शन दृष्टि रु आमे सेंटेंस गुडी को बा वर्ब गुडी को आमे दुई भाग विभक्त कले गोटे हला एक्शन वर्ब गोटे हला नॉन एक्शन वर्ब बा स्टेटिव वर्ब क्लियर हे गेला एबे आमे दिबा वर्ब अन्य प्रकार भेद आलोचना करिबा ताहारे ऑब्जेक्ट को बेस करिके ये होची एक्शन को बेस करके आमे दुई भाग विभक्त कले वर्तमान जदि आमे ऑब्जेक्ट कथा आलोचना करिबा ऑब्जेक्ट को बेस करके आमे वर्ब को दुई भाग विभक्त करिबा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटा हम लिखि दबा जे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट क्लियर है गला बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट को बेस करके हमें वर्ब को कौन करिबा आको मध्य दुई भाग विभक्त करि परिबा ऑब्जेक्ट को बेस करके हमें वर्ब को केते विभक्त करि परिबा दुई भाग विभक्त करि परिबा कौन कौन ना गोटी होची ट्रांजिटिव वर्ब आ गोटे हला इनट्रांजिटिव वर्ब क्लियर ओडिया रे हम कोन कहबा सकर्मक आकु कोन कहबा अकर्मक अर्थात यदि सकर्मक माने कोन प्लस ऑब्जेक्ट ये होची माइनस ऑब्जेक्ट अर्थात एटी ऑब्जेक्ट रो व्यवहार दरकार नाही टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस रो सेंस को कंप्लीट करिया पई बिना ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हे परिबो सेंस तेनु एठी जेहेतु ऑब्जेक्ट रो आवश्यकता नाही टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस तेनु एको आमे इंट्रांजिटिव वर्ब बोली कहबा जेपरि भाबरे धरि ने जो आमे सेंटेंस लिखिबा जे ट्रांजिटिव वर्ब रे राम ईट्स राइस आमे जति खाली कहबा राम ईट्स राम खाए वाक्य कंप्लीट सेंस आसुने तन कोन खाइले उत्तर कोन आसी क्वेश्चन कोन आसी राइस राइस होची एटी ऑब्जेक्ट क्लियर है गला राइस होची एटी ऑब्जेक्ट एवं एटी ईट्स होची ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर यदि हम कहबा आई एम लाफिंग मु हसुची कोन हसुची किछ आवश्यकता नै कोन उत्तर किछ आसीबो गेठी आई एम लाफिंग कहले मु हसुची एहा भी वाक्य को कंप्लीट करछि एहा भी सेंस कंप्लीट अछि एठी आई एम लाफिंग तेनु दे आर रनिंग हम एठी ओवर में एडवर्ब यूज कर पे दे आर रनिंग स्पीडली किंतु एठी ऑब्जेक्ट आवश्यकता अछि कि दे आर रनिंग से मन दौचंदी कोन दौचंदी तार किछ आवश्यकता उत्तर नै तेन को दे आर रनिंग ये मध्य वाक्य को कंप्लीट करछि तेन एठी जो रनिंग अछि बा लाफिंग हो बा रनिंग हो एठी कोन से ऑब्जेक्ट आवश्यकता नै नो ऑब्जेक्ट हला तेनु एठी ये सब इनट्रांजिटिव वर्ब क्लियर है गला देखो एठी कोन खाए उत्तर आसीबो एवं आवश्यकता भी हमको कहबो जे कोन खाए तेनु एठी ऑब्जेक्ट आवश्यकता होची टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस किंतु एठी ऑब्जेक्ट रो कोन से आवश्यकता रहउनी टू कंप्लीट द सेंस एहा मध्य पूर्ण भाव रे एहा सेंस को कंप्लीट करछि सेंटेंस रो सेंस को कंप्लीट करछि तेनु एठी कोन से ऑब्जेक्ट रो आवश्यकता नाही तेनु एठी हमें देखिबा ए क्रिया गुडी को हम कोन कहबा ना इनट्रांजिटिव वर्ब बोली कहबा एवं एही वर्ब गुडी को कोन कहबा ना ट्रांजिटिव वर्ब बोली कहबा क्लियर है गला एवं एही ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को बेस करी मध्य बा ऑब्जेक्ट को मध्य बेस करके हम सेंटेंस जो पैटर्न करिथांती एहा को मध्य दुई भाग करथांती गोटे ट्रांजिटिव पैटर्न एवं गोटे इंट्रांजिटिव पैटर्न क्लियर है गला एबे हमें टेंस को बेस करके बेस्ड ऑन टेंस हमें वर्ब को मध्य दुई भाग रे विभक्त करिबा बेस्ड ऑन टेंस वर्ब को केते यूज करिया वर्ब को दुई भाग यूज करिया कोन ना गोटे फाइनाइट वर्ब आ गोटे नॉन फाइनाइट वर्ब
ओके गोटे हला फाइनाइट वर्ब गोटे हला नॉन फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब का कहबा जो वर्ब आपको हमें फाइनाइट वर्ब को एबरी भी डिफाइन करि परिबा जे हमें ताको कहि परिबा जे प्लस टेंस एबरी भाबरा शॉर्ट में कहि परिबा प्लस टेंस आपको कहबा माइनस टेंस अर्थात जो वर्ब रे टेंस थाए ताको हमें फाइनाइट वर्ब कहबा जो वर्ब रे टेंस न थाए ताको हमें नॉन फाइनाइट वर्ब बोली कहबा ताहले जो वर्ब रे टेंस थाए अर्थात जो वर्ब को हमें देखले कहि परिबा जे वाक्यटा को टाइम रे रहिछि प्रेजेंट टाइम रे रहिछि ना पास्ट टाइम रे रहिछि कारण से टेंस अछि ताकू ही हमें फाइनाइट वर्ब कहबा आ गोटे कथा इंपोर्टेंट जिंस होछि जो वर्ब कोन करथाने सब्जेक्ट सहित एग्रीमेंट भी करिथाय सब्जेक्ट सहित जो वर्बटा एग्रीमेंट करथाय ताकू भी हमें फाइनाइट वर्ब भी कहबा फाइनाइट वर्ब माने सब्जेक्ट सहित ही एग्रीमेंट करथान नॉन फाइनाइट वर्ब माने सब्जेक्ट सहित कोन एग्रीमेंट ही करि न थाते ताले हमें प्रथमे टेंस किपरि रहिथाय चला हम आलोचना करिबा जे किपरि जानिबा जे एटा फाइनाइट एटा होछि नॉन फाइनाइट वर्ब यदि मु कहिबी जे I am playing football second sentence होछि I was playing football फर्स्ट सेंटेंस कोन ना फर्स्ट सेंटेंस होछि I am playing football सेकंड सेंटेंस कोन होछि सेकंड सेंटेंस होछि I was playing football देखो दीटा सेंटेंस रे बोथ सेंटेंस रे सब्जेक्ट होछि I क्लियर हेगला प्लेइंग फुटबॉल एठी भी प्रेडिकेट पार्ट प्लेइंग फुटबॉल ना सॉरी एठी प्लेइंग फुटबॉल जेठी अछि एठी भी से प्लेइंग फुटबॉल अछि डिफरेंसेस कोटा यदि हम कहिबा जे आई एम प्लेइंग फुटबॉल टा एवं आई वाज प्लेइंग फुटबॉल भितरे कोटा को समय रो ना हमें सीधा सब उत्तर दे परिबा आई एम प्लेइंग फुटबॉल टा होछि प्रेजेंट टाइम को सूचौछि ये होछि प्रेजेंट टाइम को सूचौछि ये होछि पास्ट टाइम को सूचौछि बुझि बच्चा आई एम प्लेइंग फुटबॉल टा का सूचौछि ना प्रेजेंट टाइम को सूचौछि एवं आई वाज प्लेइंग फुटबॉल टा को समय को सूचौछि ना पास्ट टाइम को सूचौछि ताले एठी लक्ष्य करो जे प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम एठी तो प्लेइंग अछि एठी प्लेइंग अछि एते क्रिया दिटा ना एठी प्लेइंग दिटा मेन वर्ब प्लेइंग तो सेम अछि तेनु प्लेइंग को देखले हमें केबे कहि परिबा नै जे को टाइम उभय तो फुटबॉल होछ ऑब्जेक्ट उभय तो सब्जेक्ट होछ है ताले डिफरेंसेस कोडी रहिछि डिफरेंस होछि आम एवं वाज ए दुईटा अंक कोन करथाय ना हमको टाइम सूचेय पर साहाय्य करछि I am playing football टा present time सूचौछि I was playing football टा past time सूचौछि ताले who helps us to identify ना the am और was ताले am और was एठी कोन अछि ए मान के पाखरे ही प्लस ये होछि टेंस अछि ए मान ही टेंस धारण करथि ये प्रेजेंट टाइम को धरछि ये प्रेजेंट टेंस ही होछि तार पास्ट टेंस को तेनु जे टेंस धारण करछि जे हमको टेंस अकॉर्डिंग चलछि जो वर्ब ताकू ही हमें फाइनाइट वर्ब बोली कहबा बाकी जो फ्लेइंग जोटा रही छै उभय तो सेम रही छै आईएनजी फॉर्म रही छै यो छै आईएनजी पार्टिसिपल अछि तने ए उभय ए जे प्लेइंग होछि कोन ना नॉन फाइनाइट वर्ब यो छै नॉन फाइनाइट वर्ब वाज होछि कोन ना फाइनाइट वर्ब क्लियर हे गेला सेहि परि भाबरे जदि हमें दुटा सिंपल प्रेजेंट रो वाक्य नबा बा प्रेजेंट परफेक्ट नबा कि पास्ट परफेक्ट नबा ताकू भी हम ऑलरेडी बुझी परिबा धरि ने जो हमें कहबा राम हैज played football द्वितीय वाक्य होछि राम had played football ताहले एठी फाइनल कोडा नॉन फाइनल कोडा देखो has ता had है यही ये प्रेजेंट को सूचौछि ये भी प्रेजेंट को ये पास्ट को सूचौछि ओके ये प्रेजेंट को सूचौछि ये पास्ट को सूचौछि एठी प्लेड अछि एठी भी प्लेड अछि वर्ब थर्ड फॉर्म रहिछि तेनु उभय रे जो वर्ब रहिछि प्लेड एठी प्लेड तेनु एमाने ही केबे हमकु टेंस सूचै नांते तेनु हमकु टेंस के सूचौछि हाज एवं हाड तेनु हाज आ हाड होछि फाइनाइट वर्ब एवं ए प्लेड होछि कोन नॉन फाइनाइट वर्ब आ गुडी कथा सर्वदा वाक्य रे फाइनाइट वर्ब प्रथम रहितै एवं तापर वर्ब गुडी नॉन फाइनाइट वर्ब रहितै आ गुडी कथा सबसे इंपोर्टेंट जिंस होछि सर्वदा वाक्य रे केवल गोटिए मात्र फाइनाइट वर्ब आछो एक रो अधिक फाइनाइट वर्ब रहि परिबो नै किंतु एक रो अधिक नॉन फाइनाइट वर्ब रहितै बुझि पाइलो तले फाइनाइट वर्ब कोन ना जेउ वर्ब टेंस धारण करथै सेकंड कथा होछि जे टेंस बा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चली थाए केपरि भाबरे देखो एठी राम हैज प्लेड फुटबॉल कि जदि राम जाके मु आई लिखिबी तले हैज ता कोन हे जिवो हाव हे जिवो आई हैव प्लेड फुटबॉल हे जिवो से प्रेजेंट परफेक्ट रखली किंतु हैज ता कोन हे गेला हाव हला आई पाकर हाव लागिला राम पाकर हैज लागिला तेनु राम ता कोन
तृतीय पुरुष एक वचन आईटा कौन प्रथम पुरुष एक वचन जो पुरुष आम बदल देले वचन स्थिर रखी कि पुरुष जो बदल देले सब्जेक्ट को परिवर्तन करदे ऑटोमेटिकली वर्ब परिवर्तन है एठी किंतु प्लेड एठी भी प्लेड अछि एठी भी प्लेड अछि एठी प्लेड अछि प्लेड रे किछि परिवर्तन होई नाही तेनु जो वर्ब टेंस धारण करि थाए ता सहित सब्जेक्ट सहित एग्रीमेंट करि थाए सब्जेक्ट परिवर्तन हेले से वर्ब भी परिवर्तन हो जाए सही क्रिया को हमें फाइनाइट वर्ब कहबा एवं अन्य वर्ब गुडी को वाक्य रे नॉन फाइनाइट वर्ब बोली कहबा ताले हमें क्लियर हे गेले जे बेस्ड ऑन टेंस को बेस करके हमें कि भली भाबरे कोन करछंती ना वर्ब डिवाइडेशन करछंती तापर हम आलोचना करिबा जते बळे टेंस प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस करि थांती सेते बळे तुमे देखो केते बडी क्रिया कथा आलोचना करिबा जेपरि प्ले प्ले रा पास्ट टेंस कोन एठी हम प्रेजेंट लिखिबा आ एठी पास्ट लिखिबा प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म प्ले ओके प्रेजेंट फॉर्म एठी होजी पास्ट फॉर्म ताले प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म एठी हला प्ले एठी कोन हला प्ले देखो प्ले एठी होजी प्ले से परि हबरे जे हम कहिबा कट एठी कोन हला कट रन एठी कोन हला रन क्लियर हे गेला देखो एठी हम एठी तीनटा क्रिया नै छै गोटे हला प्ले गोटे कट एवं गोटे रन केतरा क्रिया नै छै एठी हम तीनटा नै छै गोटे प्ले नै छै गोटे कट नै छै गोटे रन नै छै देखो जते बेले प्ले रो पास्ट टेंस यूज करे सेते बेले कोन यूज करला एतरे ईडी जो कहला प्ले प्लस ईडी किंतु एठी कट कोन होईची एठी ईडी जो होईची कि हेनी कट सही कट हे रहला एठी रन कोन हला रन हला एठी ईडी जो होईची कि हेनी ताहले जते बेले हम प्रेजेंट रो पास्ट करि थांती केते बडी क्रिया हम देखिबा सेते बेले ईडी जो करे थांती किंतु केते बडी क्रिया को हमें सेते ईडी जोग करि न थांती बुझि परछ तेनु एई केस को नै कि हमें वर्ब दुई भाग विभक्त कर परिबा कोन ना गोटे रेगुलर वर्ब गोटे इरेगुलर वर्ब बुझि परछ रेगुलर वर्ब का कहबा जोथरे ईडी जोग हो आउ इरेगुलर कहा कहबा जोथरे ईडी जोग होबार प्रश्न उठो नाही तने एई परि भाबरे मध्य हमें वर्ब गुडी को अलग अलग भाबरे विभक्त करि तने क्लियर हे गेला हमें कि भली भाबरे वर्ब रो डेफिनेशन करि थांती तेनु कले भलो भाबरे एगुडी को भलो भाबरे बुझ जानो एवं जदि प्रथम थर पे आसो मो चैनल को मते सब्सक्राइब करो एवं लाइक भी निश्चित भाबरे करो कारण आपन को लाइक और सब्सक्रिप्शन मो पय एनर्जी होते एवं मु चेष्टा करिबी जे सबले पय आपन को भलो भलो कंटेंट आनि देबा